Hello students, we are reading first story of our supplementary book Vistas, and the title of the story The Third Level. And we have read in this story the main character Charlie. We have read about the Charlie that he have seen the third level on the Grand Central Railway Station, New York. But his friends, his psychiatrist friend and his all friend or acquaintance जो उसके हैं, they consider that Charlie want to escape from the modern world. That's why he has seen the third level. Okay, तो वो इसको झूठ बताता है और he tell us his story that how he wander at the third level at Grand Central Station. तो ये अभी तक हम पढ़ चुके हैं. इतना हम अब तक पढ़ चुके हैं. एंड जो इलिनॉइस गैल्सबर्ग था वहाँ वो जाना चाहता था. कहाँ से? थर्ड लेवल से. क्योंकि थर्ड लेवल से उसने देखा, वहाँ पर जो थर्ड लेवल पे उसने जो ऑब्ज़र्व किया कि वहाँ से जो है 1894 ईयर का वो रेलवे प्लेटफॉर्म था. और वहाँ से वहाँ पे जो उसने न्यूज़पेपर देखा, वहाँ पे 1894 की जो डेट थी उस न्यूज़पेपर पे, उससे उसको कंफर्म हो गया दैट ही इज़ on that level where he can get train for the Illinois Galesburg, पुराने ज़माने के Illinois Galesburg में. And he want two tickets to go there, two tickets for him and Louisa, his wife. Now start today's text. Have you ever been there? It's a wonderful town still, with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. Now he is telling about the Illinois Galesburg. Illinois Galesburg जो है कहता है कि आप कभी गए हैं वहाँ पे, बहुत ही अच्छा वो टाउन है. फ्रेम हाउसेस हैं, ओल्ड फ्रेम हाउसेस, बड़े बड़े लॉन हैं वहाँ पे. एंड ट्रेमेंडस ट्रीज, ट्रेमेंडस मीन्स होता है बहुत बड़े, वेरी बिग, लार्ज ट्रीज, हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ द स्ट्रीट, जिनकी जो ब्रांचेज हैं वो स्ट्रीट के ऊपर ऐसे लगता है रूफ बन गई हैं. रूफ मतलब जो छत होती है, ऐसे लगता है गलियों में छत का काम कर रही हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ tremendous trees. And in 1894 summer evening were twice as long and people sat out on their lawns, the men smoking cigars and talking quietly, the women waving palm leaf fans with the fireflies all around in a peaceful world. अब वो वहाँ की एटमॉस्फेयर के बारे में बताता है कि in 1984 when he was a child summer evenings were twice as long. तो जो समर की इवनिंग होती थी वो बहुत बड़ी होती थी. एंड पीपल सेट अराउंड, लोग बैठते थे लॉन्स में. जो मेंस थे वो स्मोक करते थे और जो महिलाएं थी दे वेव पाम लीफ फैंस, पाम का जो पेड़ होता है, पत्ते होते हैं, उनके फैन वेव करते थे, मतलब बुनते थे. विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और जो फायर फ्लाइज होती हैं वो चारों तरफ टिमटिमाती थी, ट्विंकल करती थी. इन अ पीसफुल वर्ल्ड टू बी बैक देयर with the First World War still 20 years off and the World War II over 40 years in the future. यानी 1894 में अभी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो अभी 20 ईयर्स ऑफ थी, 20 साल थे अभी. ठीक है, 1914 में 1914 में जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी वो अभी 20 ईयर्स फ्यूचर में आने वाली थी. और जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड थी वॉज ओवर 40 years in the future. I wanted 2 tickets for that place. और मुझे 2 टिकट चाहिए थे उस स्थान पे जाने के लिए, 1894 के इलिनॉइस गैल्सबर्ग जाने के लिए, जहाँ पे कि एकदम पीसफुल एटमॉस्फेयर था. तो नाउ वी कैन थिंक दैट why he want to go Illinois Galesburg. Why? Because what he have described about that place, that there is peace all around there. एंड तो ये जो इमेजिनेशन है ये भी हमें शो करती है दैट ही वांट टू escape फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड रियलिटीज. हाँ, दैट्स व्हाई ही वांट टू गो इन द पास्ट ना. ओके, नेक्स्ट.
The clerk figured the fare. He glanced at my fancy hatband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets, one way. But when I counted out the money and looked up, the clerk was staring at me. He nodded at bills. That are not money, mister, he said. And if you are trying to skin me, you won't get very far. And he glanced at the cash drawer beside him. Of course, the money was old style bills, half again as big as the money we use nowadays, and different looking. I turned away and got out fast. There is nothing nice about jail even in 1894. What happened? He went to the टिकट विंडो तक गया जहाँ पे कि क्लर्क जो है फेयर का मतलब होता है जो किराया भाड़ा होता है वेजेज होते हैं उनको गिन रहा था ठीक है तो ही ग्लांस्ड एट माय फैंसी हेडबैंड मेरी तरफ देख रहा था ग्लांस कर रहा था लेकिन वो फिगर करता रहा फेयर को एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स मेरे पास पर्याप्त पैसे थे 2 टिकट लेने के लिए ठीक है ऑन वन वे यानी एक तरफ का किराया मेरे पास था बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी लेकिन जब मैंने पैसे गिने और ऊपर देखा द क्लर्क स्टेयरिंग एट मी स्टेयरिंग मीन्स होता है अटेंटिवली देखना ही वॉज लुकिंग एट मी अटेंटिवली ही नोडेड मीन्स होता है मूवमेंट ऑफ हिज हेड अपने सर को उसने हिलाया और मेरे से कहा दैट आर नॉट मनी कि ये पैसे नहीं है मिस्टर और इफ़ यू ट्राइंग टू स्किन मी का मीन्स होता है यू वांट टू डिसीव मी अगर तुम मुझे डिसीव करना चाहते हो धोखा देना चाहते हो यू वॉन्ट गेट वेरी फार तो ऐसा कर नहीं पाओगे यू वॉन्ट गेट वेरी फार यानी यू कैन नॉट बी सक्सेस गेट सक्सेस इन दैट एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम अब उसने अपने कैश ड्रॉवर की तरफ देखा देन आई रियलाइज दैट देर आर ओल्ड स्टाइल बिल्स ऑल ओल्ड स्टाइल बिल्स यानी पुरानी करेंसी थी एज बिग हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज यानी लगभग आधी जो उनका साइज़ था वो बड़ी थी जो करेंसी आज हम यूज़ करते हैं एंड डिफरेंट लुकिंग ऑफ कोर्स डिफरेंट लुकिंग आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894 और मैं वहाँ से तुरंत भाग गया वाई क्योंकि जेल जो है 1894 में भी अच्छी नहीं थी 1894 में ऑल द थिंग्स आर वेरी वेरी गुड बट जेल तो जेल होती है एंड दैट वाज दैट आई लेफ्ट द सेम way I came, I suppose. Next day, during lunch hour, I drew $300 out of the bank, nearly all we had, and bought old style currency. That really worried my psychiatrist friend. You can buy old money at almost any coin dealers, but you have to pay a premium. My $300 brought less than 200 in old style bills, but I didn't care. Eggs were 13 cents a dozen in 1894. Now what happened? उसने एक्सचेंज कर दी अपनी सारी मनी सारे के सारे पैसे निकाले जो कि $300 थे और उस करेंसी को चेंज कर दिया किसमें ओल्ड करेंसी बिल्स में तो वो लगभग $200 के हो गए क्योंकि प्रीमियम उसमें कट गया लेकिन उसको इसकी चिंता नहीं थी बिकॉज वो कहता है कि क्या है 1894 में जो है बहुत सस्ता ज़माना था और जो सारी चीज़ें थी वो सस्ती आ जाती थी और जब मैं ये एक्सचेंज करवा रहा था तो सब वरीड हुए मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड भी वरीड हुआ इसको लेकर कि वाई आई एम एक्सचेंजिंग माई ऑल द मनी इन ओल्ड स्टाइल करेंसी बिल तो ही व्हाट ही डिड he exchanged all his saving $300 into old styles bill why because you want the tickets na to go the इलिनॉइस गैल्सबर्ग उसको जाने के लिए उसने चेंज करवा दी अपनी सारी मनी बट आई नेवर अगेन फाउंड द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन नेवर फाउंड अगेन the corridor that leads to the third level at Grand Central Station although I have tried often enough लेकिन उसके बाद when I exchanged my all the money I never found that corridor वो कॉरिडोर ही नहीं मिला मुझे which leads to थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन
थर्ड लेवल उसके बाद कभी नहीं मिला। Lucia was pretty worried when I told her all this and did not want me to look for the third level anymore. अब उसकी जो वाइफ है वो काफ़ी वरीड हुई। प्रीटी वरीड का मीन्स होता है बहुत ज़्यादा वरीड। प्रीटी गुड मीन्स होता है बहुत अच्छा। प्रीटी जहाँ पे लग जाता है यानी क्वांटिटी जो है ज़्यादा थी वरी की। और फिर मैंने थर्ड लेवल देखना छोड़ दिया। आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप्ड एंड आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प कलेक्शन, यानी स्टैम्प कलेक्शन वो करता था तो वापस स्टैम्प कलेक्शन करने लगा। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड। लेकिन अब क्या कहता है वो कि अब कुछ दिनों के लिए तो मैंने स्टैम्प कलेक्टिंग कर दिया, लेकिन अब वी आर बोथ लुकिंग, मैं और लुइसा हमेशा एवरी वीकेंड पे जाते हैं क्या देखने के लिए, थर्ड लेवल खोजने के लिए। बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ, बिकॉज वी हैव नाउ प्रूफ, हमारे पास प्रूफ है दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर, कि थर्ड लेवल वहां पे है। माई फ्रेंड सैम वीनियर डिसअपियर्ड, मेरा जो फ्रेंड था सैम वीनियर जो कि साइकेट्रिस्ट था वो डिसअपियर्ड हो गया, गायब हो गया। नाउ नोबडी न्यू वेयर बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स अ सिटी बॉय एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। I went to school there and he always said he liked the sound of the place and that's where he is all right in 1894। क्योंकि जो सैम था वो हमेशा शहर में रहा एंड आई ऑलवेज टेल हिम द स्टोरीज ऑफ गैल्सबर्ग, और वो हमेशा कहता था कि ये जगह मुझे बहुत पसंद है, आई वॉन्ट टू बी देयर। हाँ 1894 में। तो वो जो सेम वीनियर है उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, उसे लगता है, वो सस्पेक्ट करता है कि जो वह सैम है जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उसका, वो कहाँ चला गया होगा, इलिनॉइस गैल्सबर्ग चला गया होगा 1894 में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।